1 year Bible reading plan. Mark 6 chapter 30 to 56 verse, Leviticus 25 chapter. 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 30 वचन से 56 वचन तक और लेव्य व्यवस्था 25 अध्याय। जब इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में जब पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। मार्क 6 चैप्टर 30 वर्स से पढ़ेंगे। And the apostles gathered themselves together unto Jesus and told him all things, both what they had done and what they had taught. And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place and rest a while. For there are many coming and going, and they had no leisure so much as to eat. And they departed into a desert place by ship privately. And the people saw them departing, and many knew him, and ran afoot thither out of all cities, and outwent them, and came together unto him. And Jesus, when he came out, saw much people, and was moved with compassion toward them, because they were as sheep not having a shepherd, and he began to teach them many things. And when the day was now far spent, his disciples came unto him and said, This is a desert place, and now the time is far past. Send them away, that they may go into the country round about, and into the villages, and buy themselves bread, for they have nothing to eat. He answered and said unto them, Give ye them to eat. And they say unto him, Shall we go and buy 200 penny worth of bread, and give them to eat? He saith unto them, How many loaves have ye? Go and see. And when they knew, they say 5 and 2 fishes. And he commanded them to make all sit down by companies upon the green grass. And they sat down in ranks by hundreds and by fifties. And when he had taken the 5 loaves and the 2 fishes, he looked up to heaven and blessed and brake the loaves and gave them to his disciples to set before them. And the 2 fishes divided he among them all. And they did all eat and were filled, and they took up 12 baskets full of the fragments of the fishes. And they that did eat of the loaves were about 5,000 men. And straightway he constrained his disciples to get into the ship, and to go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. And he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them. And about the 4th watch of the night he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. But when they saw him walking upon the sea, they supposed it had been a spirit, and cried out. For they all saw him, and were troubled. And immediately he talked with them, and saith unto them, Be of good cheer, it is I, be not afraid. And he went up unto them into the ship, and the wind ceased, and they were sore amazed in themselves beyond measure, and wondered. For they considered not the miracle of the leaves, for their heart was hardened. And when they had passed over, they came into the land of Gennesareth, and drew to the shore. And when they were come out of the ship, straightway they knew him,
and ran through that whole region round about, and began to carry about in beds those that were sick where they heard he was. And whithersoever he entered into villages or cities or country, they laid the sick in the streets and besought him that they might touch if it were but the border of his garment, and as many as touched him were made whole. मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय 30 वचन से प्रेरितों की वापसी और एकांतवास। 30 वचन से पढ़ेंगे आगे। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में चले गए 5,000 पुरुषों को खिलाना। 33 वचन से आगे। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाए? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली थी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। वे 100-100 और 50-50 करके पांति पांति बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई, और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। यीशु का पानी पर चलना। 45 वचन से आगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पर बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। वे 53 वचन से आगे। वे पार उतरकर गन्नेसरेत में पहुँचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहाँ जहाँ समाचार पाया कि वह है, वहाँ वहाँ लिए फिरे।
और जहाँ कहीं वह गाँवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। लेविटिकस 25 वर्स चैप्टर पढ़ेंगे। 25th चैप्टर फर्स्ट वर्स से इंट्रोडक्शन है। सैबथ ऑफ द 7th ईयर, द जुबिली ऑफ ऑपरेशन, अ ब्लेसिंग ऑफ ओबीडियंस, ऑफ रिडीमिंग सर्वेंट्स। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। And the Lord spake unto Moses in Mount Sinai, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye come into the land which I give you, then shall the land keep a Sabbath unto the Lord. 6 years thou shalt sow thy field, and 6 years thou shalt prune thy vineyard and gather in the fruit thereof. But in the 7th year shall be a Sabbath of rest unto the land, a Sabbath for the Lord. Thou shalt neither sow thy field nor prune thy vineyard. That which groweth of its own accord of thy harvest thou shalt not reap, neither gather the grapes of thy vine undressed, for it is a year of rest unto the land, and the Sabbath of the land shall be meat for you, for thee, and for thy servant, and for thy maid, and for thy hired servant, and for thy stranger that sojourneth with thee, and for thy cattle, and for the beasts that are in thy land, shall all the increase thereof be meat. And thou shalt number 7 Sabbaths of years unto thee, 7 times 7 years, and the space of the 7 Sabbaths of years shall be unto thee 49 years. Then shalt thou cast the trumpet of the jubile to sound on the 10th day of the 7th month. In the day of atonement shall ye make the trumpet sound throughout all your land. And ye shall hallow the 50th year, and proclaim liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof. It shall be a jubile unto you, and ye shall return every man unto his possession, and ye shall return every man unto his family. A jubile shall that 50th year be unto you. Ye shall not sow, neither reap that which groweth of itself in it, nor gather the grapes in it of thy vine undressed. For it is the jubile, it shall be holy unto you. Ye shall eat the increase thereof out of the field. In the year of this jubilee ye shall return every man unto his possession. And if thou sell out unto thy neighbor, or buyest out of thy neighbor's hand, ye shall not oppress one another. According to the number of years after the jubilee, thou shalt buy of thy neighbor, and according unto the number of years of the fruits he shall sell unto thee. According to the multitude of years thou shalt increase the price thereof, and according to the fewness of years thou shalt diminish the price of it. For according to the number of the years of the fruits doeth he sell unto thee. Ye shall not therefore oppress one another, but thou shalt fear thy God, for I am the Lord your God. Wherefore ye shall do my statutes, and keep my judgments, and do them, and ye shall dwell in the land in safety, and the land shall yield her fruit, and ye shall eat your fill, and dwell therein in safety. And if
ye shall say, what shall we eat the seventh year? Behold, we shall not sow nor gather in our increase. Then I will command my blessing upon you in the sixth year, and it shall bring forth fruit for 3 years. And ye shall sow the eighth year, and eat yet of old fruit until the ninth year, until her fruits come in, ye shall eat of the old store. The land shall not be sold forever, for the land is mine. For ye are strangers and sojourners with me, and in all the land of your possession ye shall grant a redemption for the land. If thy brother be waxen poor, and hath sold away some of his possession, and if any of his kin come to redeem it, then shall he redeem that which his brother sold. And if the man have none to redeem it, and himself be able to redeem it, then let him count the years of the sale thereof, and restore the overplus unto the man to whom he sold it, that he may return unto his possession. But if he be not able to restore it to him, then that which is sold shall remain in the hand of him that hath bought it until the year of Jubilee. And in the Jubilee it shall go out, and he shall return unto his possession. And if a man sell a dwelling house in a walled city, then he may redeem it within a whole year. After it is sold, within a full year may he redeem it. And if it be not redeemed within the space of a full year, then the house that is in the walled city shall be established forever to him that bought it throughout his generations. It shall not go out in the Jubilee, but the houses of the villages which have no wall round about them shall be counted as the fields of the country. They may be redeemed, and they shall go out in the Jubilee. Notwithstanding the cities of the Levites and the houses of the cities of their possession may the Levites redeem at any time. And if a man purchase of the Levites, then the house that was sold and the city of his possession shall go out in the year of Jubilee, for the houses of the cities of the Levites are their possession among the children of Israel. But the field of the suburbs of their cities may not be sold, for it is their perpetual possession. And if thy brother be waxen poor, and fallen in decay with thee, then thou shalt relieve him, yea, though he be a stranger or a sojourner, that he may live with thee. Take thou no usury of him, or increase, but fear thy God, that thy brother may live with thee. Thou shalt not give him thy money upon usury, nor lend him thy victuals for increase. I am the Lord your God, which brought you forth out of the land of Egypt, to give you the land of Canaan, and to be your God. And if thy brother that dwelleth by thee be waxen poor, and be sold unto thee, thou shalt not compel him to serve as a bond servant, but as an hired servant, and as a sojourner. He shall be with thee, and shall serve thee unto the year of Jubilee. And then shall he depart from thee, both he and his children with him, and shall return unto his own family, and unto the possession of his fathers shall he return.
For they are my servants which I brought forth out of the land of Egypt. They shall not be sold as bondmen. Thou shalt not rule over him with rigor, but shalt fear thy God. Both thy bondmen and thy bondmaids, which thou shalt have, shall be of the heathen that are round about you. Of them shall ye buy bondmen and bondmaids. Moreover, of the children of the strangers that do sojourn among you, of them shall ye buy, and of their families that are with you, which they begat in your land, and they shall be your possession, and ye shall take them as an inheritance for your children after you, to inherit them for a possession. They shall be your bondmen forever. But over your brethren, the children of Israel, ye shall not rule one over another with rigor. And if a sojourner or a stranger wax rich by thee, and thy brother that dwelleth by him wax poor, and sell himself unto the stranger or sojourner by thee, or to the stock of the stranger's family, after that he is sold, he may be redeemed again. One of his brethren may redeem him, either his uncle or his uncle's sons redeem him, or any that is nigh of kin unto him of his family may redeem him. Or if he be able, he may redeem himself. And he shall reckon with him that bought him from the year that he was sold to him unto the year of Jubilee, and the price of his sale shall be according unto the number of years, according to the time of an hired servant shall it be with him. If there be yet many years behind, according unto them he shall give again the price of his redemption out of the money that he was bought for. And if there remain but few years unto the year of Jubilee, then he shall count with him, and according unto his years shall he give him again the price of his redemption. And as a yearly hired servant shall he be with him, and the other shall not rule with rigor over him in thy sight. And if he be not redeemed in these years, then he shall go out in the year of Jubilee, both he and his children with him. For unto me the children of Israel are servants, they are my servants, whom I brought forth out of the land of Egypt. I am the Lord your God. लैव्य व्यवस्था 25 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। 7वां वर्ष विश्राम वर्ष, पहले वचन से। फिर यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जो मैं तुम्हें देता हूँ, तब भूमि को यहोवा के लिए विश्राम मिला करे। 6 वर्ष तो अपना अपना खेत बोया करना, और 6 वर्ष अपने अपने दाख की बारी छांट छांट कर देश की उपज इकट्ठी किया करना। परंतु 7वें वर्ष भूमि को यहोवा के लिए परम विश्राम काल मिला करे। उसमें न तो अपना खेत बोना और न अपनी दाख की बारी छांटना। जो कुछ काटे हुए खेत में अपने आप से उगे उसे न काटना, और अपनी बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को न तोड़ना, क्योंकि
वह भूमि के लिए परम विश्राम का वर्ष होगा। भूमि के विश्राम काल ही की उपज से तुमको और तुम्हारे दास दासी को और तुम्हारे साथ रहने वाले मजदूरों और परदेशियों को भी भोजन मिलेगा, और तुम्हारे पशुओं का और देश में जितने जीव जंतु हो उनका भी भोजन भूमि की सब उपज से होगा। जुबली वर्ष 7 विश्राम वर्ष अर्थात 7 गुना 7 वर्ष गिन लेना। 7 विश्राम वर्षों का यह समय 49 वर्ष होगा। तब 7वें महीने के 10वें दिन को अर्थात प्रायश्चित के दिन जय जयकार के महाशब्द का नरसिंगा अपने सारे देश में सब कहीं फुकवाना, और उस 50वें वर्ष को पवित्र मानना और देश के सारे निवासियों के लिए छुटकारे का प्रचार करना। वह वर्ष तुम्हारे यहाँ जुबली कहलाए। उसमें तुम अपनी अपनी निज भूमि और अपने अपने घराने में लौटने पाओगे। तुम्हारे यहाँ वह 50वां वर्ष जुबली का वर्ष कहलाए। उसमें तुम न बोना और जो अपने आप उगे उसे भी न काटना, और न बिन छाटी हुई दाखलता की दाखों को तोड़ना, क्योंकि वह जो जुबली का वर्ष होगा वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। तुम उसकी उपज खेत ही में से ले के खाना। इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे, और यदि तुम अपने भाई बंधु के हाथ कुछ बेचो या अपने भाई बंधु से कुछ मोल लो तो तुम एक दूसरे पर अंधेर न करना। जुबली के बाद जितने वर्ष बीते हो उनकी गिनती के अनुसार दाम ठहरा के एक दूसरे से मोल लेना, और शेष वर्षों की उपज के अनुसार वह तेरे हाथ बेचे। जितने वर्ष और रहे उतना ही दाम बढ़ाना, और जितने वर्ष कम रहे उतना ही दाम घटाना, क्योंकि वर्ष की उपज की संख्या जितनी हो उतनी ही वह तेरे हाथ बेचेगा। तुम अपने अपने भाई बंधु पर अंधेर न करना, अपने परमेश्वर का भय मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 7वें वर्ष की समस्या 18 वचन से आगे। इसलिए तुम मेरी विधियों को मानना और मेरे नियमों पर समझ बूझ कर चलना, क्योंकि ऐसा करने से तुम उस देश में निडर बसे रहोगे। भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी और तुम पेट भर खाया करोगे और उस देश में निडर बसे रहोगे। और यदि तुम कहो कि 7वें वर्ष में हम क्या खाएंगे, न तो हम बोएंगे न अपने खेत की उपज इकट्ठा करेंगे, तो जानो कि मैं तुमको 6वें वर्ष में ऐसी आशीष दूंगा कि भूमि की उपज 3 वर्ष तक काम आएगी। तुम 8वें वर्ष में बोओगे और पुरानी उपज में से खाते रहोगे, और 9वें वर्ष की उपज जब तक न मिले तब तक तुम पुरानी उपज में से खाते रहोगे। भू संपत्ति छुड़ाने की विधि 23 वचन से आगे। भूमि सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है और उसमें तुम परदेशी और बाहरी होगे, लेकिन तुम अपने भाग के सारे देश में भूमि को छुड़ा लेने देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। यदि किसी मनुष्य के लिए कोई छुड़ाने वाला न हो और उसके पास इतना धन हो कि आप ही अपने भाग को छुड़ा सके, तो वह उसके बिकने के समय से वर्षों की गिनती करके शेष वर्षों की उपज का दाम उसको जिसने उसे मोल लिया हो फेर दे। तब वह अपनी निज भूमि का अधिकारी हो जाए। परंतु यदि उसके पास इतनी पूंजी न हो कि उसे फिर अपनी कर सके, तो उसकी बेची हुई भूमि जुबली के वर्ष तक मोल लेने वालों के हाथ में रहे और जुबली के वर्ष में छूट जाए, तब वह मनुष्य अपनी निज भूमि का फिर अधिकारी हो जाए। फिर यदि कोई मनुष्य शहर पनाह वाले नगर में बसने का घर बेचे,
तो वह बेचने के बाद वर्ष भर के अंदर उसे छुड़ा सकेगा, अर्थात पूरे वर्ष भर उस मनुष्य को छुड़ाने का अधिकार रहेगा। परंतु यदि वह वर्ष भर में न छुड़ाए तो वह घर जो शहरपनाह वाले नगर में हो मोल लेने वाले का बना रहे और पीढ़ी पीढ़ी में उसी के वंश का बना रहे, और जुबली के वर्ष में भी न छूटे। परंतु बिना शहरपनाह के बिना शहरपनाह के गाँवों के घर तो देश के खेतों के समान गिने जाए। उसका छुड़ाना भी हो सकेगा और वे जुबली के वर्ष में छूट जाए। फिर भी लेवियों के निज भाग के नगरों के जो घर हो उनको लेवीय जब चाहे तब छुड़ाए, और यदि कोई लेवीय अपना भाग न छुड़ाए तो वह बेचा हुआ घर जो उसके भाग के नगर में हो जुबली के वर्ष में छूट जाए, क्योंकि इस्राएलियों के बीच लेवियों का भाग उनके नगरों में वे घर ही है, पर उनके नगरों के चारों ओर की चराई की भूमि बेची न जाए, क्योंकि वह उनका सदा का भाग होगा। कंगालों को उधार देना। 35 वचन से आगे, फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए तो तू उसको संभालना, वह परदेशी या यात्री के समान तेरे संग रहे, उससे ब्याज या बढ़ती न लेना। परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया न देना और न उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। 39 वचन से आगे पढ़ेंगे। दासों को छुड़ाने की विधि। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु तेरे सामने कंगाल होकर अपने आप को तेरे हाथ बेच डाले तो उससे दास के समान सेवा न करवाना। वह तेरे संग मजदूर या यात्री के समान रहे और जुबली के वर्ष तक तेरे संग रहकर सेवा करता रहे। तब वह बाल बच्चों समेत तेरे पास से निकल जाए और अपने कुटुंब में और अपने पितरों की निज भूमि में लौट जाए, क्योंकि वे मेरे ही दास हैं, जिनको मैं मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। इसलिए वे दास की रीति से न बेचे जाए। उस पर कठोरता से अधिकार न करना। अपने परमेश्वर का भय मानते रहना। तेरे जो दास दासियां हो वे तुम्हारे चारों ओर की जातियों में से हो, और दास और दासियों उन्हीं में से मोल लेना। जो यात्री लोग तुम्हारे बीच में परदेशी होकर रहेंगे उनमें से और उनके घरानों में से भी जो तुम्हारे आसपास हो और जो तुम्हारे देश में उत्पन्न हुए हो, उनमें से तुम दास और दासी मोल लो और वे तुम्हारा भाग ठहरे। तुम अपने पुत्रों को भी जो तुम्हारे बाद होंगे उनके अधिकारी कर सकोगे और वे उनका भाग ठहरे। उनमें से तुम सदा अपने लिए दास लिया करना, परंतु तुम्हारे भाई बंधु जो इस्राएली हो उन पर अपना अधिकार कठोरता से न जताना। फिर यदि तेरे सामने कोई परदेशी या यात्री धनी हो जाए और उसके सामने तेरा भाई कंगाल होकर अपने आप को तेरे सामने उस परदेशी या यात्री या उसके वंश के हाथ बेच डाले, तो उसके बिक जाने के बाद वह फिर छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसको छुड़ा सकता है, या उसका चाचा या चचेरा भाई तथा उसके कुल का कोई भी निकट कुटुंबी उसको छुड़ा सकता है। या यदि वह धनी हो जाए तो वह आप ही अपने को छुड़ा सकता है। वह अपने मोल लेने वाले के साथ अपने बिकने के वर्ष से जुबली के वर्ष तक हिसाब करे
और उसके बिकने का दाम वर्षों की गिनती के अनुसार हो, अर्थात वह दाम मजदूर के दिवसों के समान उसके साथ होगा। यदि जुबली के वर्ष के बहुत वर्ष रह जाए तो जितने रुपयों से वह मोल लिया गया हो उनमें से वह अपने छुड़ाने का दाम उतने वर्षों के अनुसार फेर दे। यदि जुबली के वर्ष के थोड़े वर्ष रह गए हो तो भी वह अपने स्वामी के साथ हिसाब करके अपने छुड़ाने का दाम उतने ही वर्षों के अनुसार फेर दे। वह अपने स्वामी के संग उस मजदूर के समान रहे जिसकी वार्षिक मजदूरी ठहराई जाती हो, और उसका स्वामी उस पर तेरे सामने कठोरता से अधिकार न जताने पाए। और यदि वह इन रीतियों से छुड़ाया न जाए तो वह जुबली के वर्ष में अपने बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि इस्राएली मेरे ही दास है, वे मिस्र देश से मेरे ही निकाले हुए दास है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित मैथ्यू 17th चैप्टर 14 से 21 वर्स और एक्सोडस 5 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 14 वचन से 21 वचन तक और निर्गमन की पुस्तक 5 अध्याय। जब 2 साल का 2 years का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे तो हम अकेले में बैठकर इसे अपने व्यक्तिगत समय में इसे पढ़ना है, वेरी पर्सनल, हमारे अकेले में इसे मनन करते हुए, अभ्यास करते हुए पढ़ना है। और इसके अंदर से हमारे हृदय के डीप में हमारे गहरी बात जो परमेश्वर का वचन कैच कर लेता है और कुछ बताता है उसके विषय में, तो हमने उसे पकड़ लेना है और नोट्स बनाना है। और फिर परमेश्वर कुछ नया ऐसा उसमें से हमको कुछ बता रहा है, सिखा रहा है, तो हमने उसको भी नोट्स में बनाना है, ताकि ये नोट्स बनने के बाद इसको हम पूरी तरह से हमारे ज़िंदगी में चालू करना है, शुरुआत करना है, ताकि हमारा जीवन 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान ख़त्म होते समय एक अलग व्यक्ति होकर निखर कर आएगा, उभर कर आएगा, जो परमेश्वर के वचन से ढला गया है, आकार दिया गया है। और ये परमेश्वर के लिए बहुत उपयोगी ऐसा बर्तन होकर हम परमेश्वर के लिए तैयार रहेंगे। और हमें ये काम करने के लिए अनुग्रह मिल चुका है और हम ये कर सकते हैं, मसीह के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। ये हम अपने अंदर कबूल करके इसे पूरा करते हुए इस गवाही का लाभ उठाना है जो 2 साल के अंत में हमको मिल रही है। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।